مسیح نے یہاں پر اپنا مشن پورا کر لیا ہے. وہ کہہ چکے ہیں ٹیلسٹائے مطلب تمام ہوا. وہ کہہ چکے ہیں, انہوں نے تمام کر لیا ہے. وہ تمام کر چکے ہیں, اپنا مشن انہوں نے تمام کر لیا. اور آخر میں آپ باپ کو کہتے ہیں اے باپ, ان سے مخاطب ہوتے ہیں. پہلے کلمے میں آپ نے کہا اے باپ, پھر اس کلمے میں بھی آپ نے کہا اے باپ, جو ایک گہری مطابقت, ایک گہرے رشتے کو ظاہر کرتا ہے. یہ اے باپ جو اصطلاح ہے, یہ ایک گہرے رشتے کو ظاہر کرتی ہے, گہری مطابقت کو ظاہر کرتی ہے, باہمی رفاقت کو ظاہر کرتی ہے. یسوع مسیح نے یہاں پر یہ کہا مشن کا پورا ہونا, یعنی تکمیل کا پورا ہونا. تکمیل مشن کر کے وہ کہتے ہیں میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ بھی اعلان ہے کہ کوئی مجھ سے میری جان کو چھین نہیں سکتا, کیونکہ مجھے اپنی جان دینے کا اور اس کو پھر لینے کا اختیار ہے. یہ اعلان یسوع مسیح کا ان عالموں کے لیے تھا, وہ جو وہاں پر بڑے دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے, جو اپنے آپ کو شریعت کے مالک سمجھ رہے تھے, جو سمجھتے تھے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا, فقط اس کی باتیں ہیں, فقط یہ باتیں کرتا ہے. ان کے لیے یہ اعلان تھا. آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یسوع مسیح نے یہاں پر عام انسان سے فرق کام کیے ہیں. یسوع مسیح نے یہاں پر عام انسان سے فرق کام کیے ہیں. لیکن آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جب یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کلمہ کہا ہے, یسوع مسیح اس وقت اطمینان میں ہے, روحانی تسکین میں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یسوع مسیح خوشی بھی محسوس کر رہے تھے کہ یسوع مسیح نے ہر سوچا, ہر نقطہ, ہر حکم جو خدا نے ان کی ذات مبارکہ کے متعلق کہا تھا, انہوں نے اپنی حیات میں پورا کر لیا تھا. وہ اپنے ہر کام کو پورا کر چکے تھے, ہر پیشن گوئی کو اپنی ذات میں پورا کر سکے تھے. جیسے مبشر صاحب نے بڑی اچھی چیزیں بتائی آپ کو کہ وہ کیا کیا تمام کر چکے تھے. یہاں پر یسوع مسیح ناصری بالکل ایک ایسے جرنیل کی مانند اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے جو جنگ جیت کر واپس آ رہا ہو, جو جنگ جیت کر واپس لوٹ رہا ہو, جسے خوشی بھی ہو, جسے تسلی بھی ہو, جسے جوش بھی ہو, اور جو ولولے سے بھی بھرا ہو کہ میں جنگ جیت کر واپس آ رہا ہوں. ایسا جنرل جس کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے, ایسا جنرل جس کو بادشاہ سے تھوڑی دیر کے بعد شاباش ملنے والی ہے, جس کا شاندار خوش استقبال ہونے والا ہے, جس کو ہر کوئی خوش آمدید کہنے والا ہے, جس کو ہر کوئی عزت دینے والا ہو. ایسا جرنیل جو جنگ جیت کر آ رہا ہو, جو انعام کا مستحق ہو, جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ اب مجھے ترقی ملنے والی ہے, جس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ اب میرا سٹیٹس بڑھنے والا ہے, اور رعایا کی طرف سے لوگ جے جے کار کے نعرے لگا رہے ہوں, سارا ملک خوشیوں سے گونج رہا ہو. ایسا ہی یسوع مسیح بھی محسوس کر رہے تھے صلیب پر, کیونکہ یسوع مسیح بھی فاتح بن چکے تھے. وہ جنگ جیت چکے تھے, انہوں نے جنگ جیتی, شیطان سے انہوں نے جنگ جیتی, انہوں نے گناہ کو ہرایا اور جنگ جیتی, انہوں نے شریعت اور مذہب کے عالموں کو ہرایا اور جنگ جیتی. قربانی کا برہ بننا پڑا, اس میں بھی وہ جنگ جیت گیا. باپ کی مکمل فرما برداری کی, اس کی مرضی پوری کرنے کا کام بھی وہ کامیابی سے کر کے اس جنگ کو بھی جیت گئے. غرض یسوع مسیح کی زندگی کا ہر پہلو دیکھ لیجئے, ہر پہلو میں وہ فتح مندی محسوس کر رہے تھے, اطمینان اور تسلی محسوس کر رہے تھے. سب جنگیں جیت کر, سب مقاصد پورے کر کے انہوں نے کہا کہ تمام ہوا. کیا کہا؟ تمام ہوا. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سب کچھ پورا ہو گیا تو بڑی
कैसे? ऊंची आवाज, ये कम आवाज नहीं है। आप सब जानते हैं कि पिछली रात से यीशु मसीह को गिरफ्तार कर लिया गया, यीशु मसीह को 6 पेशियां भुगतनी पड़ी, और जब आखिर में पिलातुस की हुकूमत में पिलातुस ने यह ऐलान कर लिया कि तुम ही इसे ले जाओ और जाकर मसलूम करो, क्योंकि पिलातुस इस बात से खुश नहीं था कि यीशु मसीह को मसलूम किया जाए। वो यीशु मसीह की जाते मुबारका में कोई भी गुनाह देख नहीं पा रहा था, कोई भी ऐसी खता देख नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे यीशु की जाते मुबारका तो है ही पाक, उसका पैदा होना पाक, उसका इस दुनिया में किरदार पाक, उनकी जात पाक, उनका रहन सहन पाक, उनका बोलचाल पाक, उनका कौलो-फेल पाक, उनका हर काम पाक, और गर्ज अपनी जिंदगी में शरीयत को पूरा करना इसमें भी पाक, कलाम की हर बात को उन्होंने अपनी हयात में पूरा किया। और मैं पिलातुस के मुतालिक आपको बताना चाहता हूं, पिलातुस के सामने जब यीशु मसीह को पेश किया गया तो पिलातुस इस बात पर हैरान है कि जब कोई चोर, डाकू, लुटेरा या कोई मुजरिम पिलातुस के सामने आता है तो पिलातुस के सामने आहें भरता है, पिलातुस को कहता है, ऐ बादशाह, आज के बाद मैं गुनाह नहीं करूंगा, आज मैनू माफी दे दे, आज मैनू छੱਡ दे, मैं चोरी नहीं करांगा। लेकिन पिलातुस इस बात पर हैरान है कि यीशु मसीह जब मेरी और आपकी खातिर मुजरिम की हैसियत से पिलातुस के सामने खड़े हैं तो पिलातुस के सामने वो कोई बात नहीं कर रहे, बाकी मुजरिम चलाते हैं, मुआफी की अपील करते हैं, रोते हैं, अपने छाती को पीटते हैं। लेकिन यीशु मसीह जब मेरी और आपकी खातिर मुजरिम की हैसियत से खड़ा है तो कोई भी ऐसी बात नहीं कह रहे, बल्कि पिलातुस अपनी गवाही में लिखता है, कहता है कि गोया ऐसे मालूम होता था कि जैसे यीशु की शादमानी इस चीज में है कि मुझे जल्दी से मेरे लोगों के कफारा के लिए मसलूब होने दे, मुझे सलीब उठाने दे, मेरे हाथों पांव में कील ठुकने दे। पिलातुस इस बात से हैरान था, हैरान था वो। 6 पेशियां यीशु को भुगतनी पड़ी, 6 पेशियां। इन पेशियों के दरमियान लोग तमस्कर उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उसको छेद रहे हैं, बातों के ताने सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाते हैं, बातों के ताने। हर कोई बातें कर रहा है कि ये बड़ा कहता था कि मैं मकदिस को ढा दूंगा और 3 दिन में दोबारा खड़ा कर दूंगा, ये बड़ा कहता था मैं खुदा में से निकला और दुनिया में आया हूं, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है। कोई मुक्के मार रहा है, कोई तमाचे मार रहा है, जिसका जैसे बस चल रहा है वो कर रहे हैं मसीह के साथ। कोई ठुड्डे मार रहा है, कोई मुक्के मार रहा है, कोई थूक रहा है, कोई उनकी पोशाक को खींच रहा है, कोई उनकी दाढ़ी को नोच रहा है, कोई उनके बालों को खींच रहा है, कोई उनको तरह तरह से अज़ियतें दी जा रही हैं। हर कोई जो उस हजूम में है जिन्होंने उसको गिरफ्तार किया है, कोई भी उस हजूम में यीशु मसीह का साथी नहीं, यीशु मसीह का हामी नहीं, यीशु मसीह के साथ नहीं, यीशु मसीह के हक में बोलने वाला नहीं, कोई भी वहां पर मौजूद नहीं है। वहां यीशु अकेले खड़े हैं, लेकिन वो इस हालत में भी वो ईमान रखे हुए हैं कि मैं और मेरा बाप एक है और मेरा बाप मेरे साथ है। हालेलुया। हर तरह से अज़ियतें दी जा रही हैं, कोड़े मारे जा रहे हैं, इस कदर वो बुरे कोड़े थे कि जब बदन पर पड़ते थे, जब बदन पर पड़ता, इसको जब खींचा जाता तो गोश्त के और खून के कतरे और गोश्त के लोथड़े दूर दूर तक जाकर गिरते थे। छलनी कर दिया जालिमों ने बदन, आपकी खातिर, मेरी खातिर। इस कदर तकलीफ है, इस कदर मुसीबत है, इस कदर भूख प्यास है, हर जिस्म में से एक एक खून का कतरा नुचड़ कर बाहर निकल चुका है, लेकिन सलीब
आवाज पूरी ताकत वाली आवाज है, ये आवाज पूरे इख्तियार वाली आवाज है। गर्ज यहां पर ऊंची आवाज में यीशु मसीह बोलकर यह साबित कर रहे हैं कि तुमने मेरे बदन से सारे खून को बहा दिया, तुमने मेरे बदन को इतना मारा कि गोश्त के लोथड़े लटक रहे हैं, मेरा पूरा बदन जख्मी है, मेरे जिस्म के एक एक हिस्से से खून रस रहा है, लेकिन तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझसे मेरी जान ले सको। यीशु बड़ी आवाज में चलाता है, भूखा ही बंदा हो तो उससे बड़ी आवाज में चलाया नहीं जाता। क्या चलाया जाता है? मारो हालेलुया नारा पड़ा, हालेलुया। तानु भुख तो नहीं लगी? दो देगा बाहर पईया ने, हालेलुया। नारा ढिला हो गया, तुसी भुखे नहीं, जिहदा मतलब है हालेलुया। यीशु मसीह बड़ी आवाज से चलाए, उनके पास अथॉरिटी इख्तियार है। दूसरे मुजरमों की तरह यीशु मसीह ने इंतजार नहीं किया कि मौत आए, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी ने खुद अपनी मौत का वक्त चुन रखा था, सिलेक्ट किया हुआ था। जब रोमी चेक करने के लिए आए तो दोनों डाकुओं की टांगें तोड़ दी गई, क्योंकि सुबह उनकी ईद फसा थी, उसको उन्होंने मनाना था, इसलिए उन्होंने जल्दी की और डाकुओं की टांगें तोड़ी। लेकिन जब यीशु के पास पहुंचे तो यीशु दम दे चुका था, हालेलुया। यीशु दम दे चुका था, इसलिए उनकी कोई भी हड्डी तोड़ी नहीं गई, क्योंकि नविश्ते का पूरा होना जरूरी था। ज़बूर नंबर 34 उसकी 20 आयत में लिखा है, उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी जाएगी, उसकी कोई भी हड्डी तोड़ी ना जाएगी। मसीह यीशु मसीह नासरी ने यहाँ पर अपनी जिंदगी में इस पेशन गोई को भी पूरा करने के लिए अपनी जान दी, इख्तियार से दी, हालेलुया, हालेलुया। बाकी लोग अपनी रूह किसको देते हैं? कोई ऐसा बंदा हो जिसने रूह खुद कहा हो ये ले जा मेरी रूह, कोई ऐसा बंदा नहीं है। बल्कि हमें तो मालूम भी नहीं होता, इंसान को तो इल्म भी नहीं होता कि उनकी रूह को कब्ज कर लिया जाता है, क्योंकि खुदा के कलाम में वाज 8 बाब उसकी 8 आयत में लिखा हुआ है, किसी आदमी को रूह पर इख्तियार नहीं कि उसे रोके, किसी आदमी को इख्तियार नहीं है, और ना ही उसे मरने के दिन पर कुछ इख्तियार है। इंसान ना अपनी रूह को रोक सकता है, ना अपने मरने के दिन को वो बदल सकता है, कोई इख्तियार नहीं इंसान का। इसका मतलब ये जो सलीब पर लटका हुआ है सिर्फ कामिल इंसान ही नहीं है, ये जो सलीब पर लटका हुआ है हमारे कफारे के लिए, ये सिर्फ कामिल इंसान ही नहीं बल्कि मज़हरे खुदा है, ये खुदा की जलालियत है, ये खुदा की कमालियत है, ये खुदा का अक्स है, ये खुदा की कुदरत है, और गोया ये खुद ही खुदा है, क्योंकि लिखा है अलहुयत की सारी मामूरी इसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। गोया सलीब पर आपका मुनज्जी खुद खुदा ही लटका हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फरिश्ते की जुर्रत नहीं है कि रूह को कब्ज कर ले, किसी फरिश्ते की जुर्रत नहीं है। फरिश्तों ने भी, बल्कि फरिश्तों की क्या हैसियत कि यीशु की रूह को लेने आए। यहां पर तो अजीब ही काम हुआ ना, फरिश्ते नहीं, यीशु ने क्या कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये तब तक नहीं है जब तक यीशु ने खुद नहीं कहा, जैसे ही यीशु ने खुद कहा है तभी ये काम हुआ है, हालेलुया, हालेलुया। ये फर्क है आम इंसान का और यीशु मसीह का, ये फर्क है। आपको पता भी नहीं चलेगा, फरिश्ता आएगा आपकी रूह को खींच कर ले जाएगा, मालूम भी नहीं होगा। जो बल्कि दना लोग, आलम लोग किताबों में लिखते हैं कि जब आपको कफनाया दफनाया जा रहा था, रूह तब भी वहीं पे पास ही होती है, और वो कह रही थी मैं इत्थे हाँ भाई, मैनू इत्थे देखो, ते नवाया जाता होंदा है, पता ही नहीं चल रहा
तथा किसी को कि ये हो क्या रहा है, लेकिन यीशु मसीह कैसे खुदावंद है, हालेलुया, वो खुद कह रहे हैं, हालेलुया। अब एक और फर्क सुनिए। आम लोगों को फिक्र होती है कि मरने के बाद रूह पता नहीं किधर जाएगी, रूह पता नहीं किधर जाएगी, दोज़ख से जाएगी या आग और गंधक की झील में जाएगी या फिर फिरदौस में जाएगी। आम लोगों को पता तो नहीं है ना। किस किस को पता मैंने जन्नत में जाना है, फिरदौस में जाना है। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੇ ਜੇ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ 1:30 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ नहीं आ गए ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ भी यकीन नहीं है। अगर आपका ईमान यीशु पर है फिर तो आपका हाथ ऊपर होना चाहिए, हालेलुया। ओए इब्लीस को दिखाएं कि मैं हूं फिरदौस का मालिक, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आम लोगों को फिक्र होती है कि मरने के बाद एल्डर साहब कितने जाना है, कोई पता नहीं, लेकिन यीशु अगर डाकू को कह रहा है कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो यीशु कहां पर होगा, हालेलुया। ये फर्क है, ये फर्क है आम इंसान का और यीशु मसीह का, हालेलुया। दूसरों की रूहें जब फिरदौस में जाती हैं तो कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ इंतजार करती हैं और आराम करती हैं। मुकाशफा 6 बाब में आप पढ़कर देख लीजिएगा, वो सिर्फ आराम करती हैं और इंतजार करती हैं। यीशु की रूह जब फिरदौस में गई, आलमे अरवाह में गई, तो लिखा है इफ्सियों 3 बाब उसकी 9 आयत में यीशु मसीह नासरी वहां पर भी जाकर कैदी रूहों में मुनादी कर रहे हैं, हालेलुया। कैदी रूहों में क्या कर रहे हैं? आज इसीलिए तो कहते हैं वैसा ही मिजाज रखो जैसा जैसा। तो हमारे मिजाज में क्या है? चर्च में लेट आना। हमारे मिजाज में क्या है? प्रस्तिश के लिए कभी भी अपने आप को पेश ना करना। हमारे मिजाज में क्या है? पीछे बैठ के हंसना, गल्ला करनिया। हमारे मिजाज में क्या है? शोर करना। हमारे मिजाज में क्या है? जे थोड़े चावल नहीं घट मिल गए ने ते एतराज करना। हमारे मिजाज में ऐसी चीजें आजकल कूट कूट के भरी हुई हैं। ओ भाई छाड़ दो इन चीजों को, छोड़ दे, आगे बढ़े, निकले, स्टेप एक आगे बढ़ जाए, हालेलुया। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, हमें मरने के बाद नहीं पता था हम किधर जाएंगे, लेकिन अगर आप मसीह यीशु में हैं तो फिर आपको पता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी। जो यीशु पर ईमान रखता है इसका मतलब है सही राह पर चल रहा है, और वो राह आपको बाप से मिलाने के लिए है, वो राह आपको फिरदौस में ले जाने के लिए है, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। तो जो कोई यीशु मसीह के साथ चल रहा है वो राह हक पर है। राह हक फिरदौस की तरफ जाएगी, दोज़ख की तरफ नहीं जाएगी। अब कितने लोग हैं जो यीशु के साथ हैं, जो यीशु को अपनी जिंदगी में लिए हुए हैं? कितने लोग हैं जो फिरदौस में जाएंगे? ताड़े दे दोवें हाथ उत्ते होने चाहिए थी, हालेलुया। तो अगर यीशु मसीह नासरी ने जब ये कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, आज हमें अपने आप को मुकम्मल बाप के सुपुर्द करने की जरूरत है। मुकम्मल सुपुर्द कर दीजिए, फिर बात बनेगी। खुदावंद आपको और मुझे आज इस कलाम के पर अमल करने की बड़ी तौफीक अता फरमाए, हालेलुया। आइए सरों को झुका